شروع کرتے ہیں اللہ کے بابرکت نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ تمام تعریفیں میرے اللہ رب العزت کے لیے ہیں۔ خوفناک کہانیوں کے معزز ناظرین کو میری طرف سے السلام علیکم۔ امید کرتی ہوں آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے، جہاں ہوں گے خوش ہوں گے، اور میرے چینل کی خوفناک کہانیوں کو بہت زیادہ پسند بھی کرتے ہوں گے۔ آج آپ لوگوں کے لیے میں بہت ڈراؤنی کہانیاں لائی ہوں جنہیں آپ لوگ بہت پسند کریں گے۔ سلسلہ شروع کرتے ہیں آج کی خوفناک کہانیوں کا۔ بڑھتے ہیں آج کی پہلی خوفناک کہانی کی طرف۔ یہ خوفناک کہانی اسلم شیئر کر رہے ہیں۔ اسلم کہتے ہیں، میں سرگودا محمدی کالونی کا رہنے والا ہوں۔ آج آپ کے ساتھ ہم لوگوں کی زندگی کی بہت بھیانک کہانی شیئر کرنا چاہتا ہوں۔ آج سے تقریباً 15 سال پرانی بات ہے، جب ہم لوگ پہلی بار محمدی کالونی شفٹ ہوئے۔ اس وقت ہم لوگوں کا گھر جو ہے محمدی کالونی گلی نمبر 20 میں تھا۔ ایک گھر ہم لوگوں نے کرائے پر لیا اور وہاں پر ہم لوگ شفٹ ہو گئے۔ میری بازار میں ایک دکان تھی کپڑوں کی جس پر میں کام کیا کرتا تھا، تو مجھے وہاں سے آنے جانے میں دیر سویر ہو جایا کرتی تھی، کیونکہ مجھے اردو بازار سے نکلتے نکلتے محمدی کالونی پہنچتے ہوئے کافی دیر ہو جاتی تھی۔ کبھی کبھار تو میں بیچ والے راستے سے نکل آیا کرتا تھا، لیکن وہ راستہ بہت زیادہ خراب تھا۔ سڑکیں اتنی خراب تھی کہ وہاں سے گزرنا بہت مشکل تھا۔ ایک تو وہاں پر سڑکوں کی تعمیر ہو رہی تھی، دوسرا سیوریج کا بھی کام چل رہا تھا، تو مجھے مین گول چوک والی سائڈ سے ہی محمدی کالونی آنا ہوتا تھا۔ مجھے اکثر دیر ہو جاتی تھی، 12 ساڑھے 12 بج جاتے تھے۔ راستے میں شیرپا چوک میں دوست مل جاتے تھے، ان کے پاس بیٹھ کر گپ شپ کرنا، تو اس لیے دیر سویر ہو جاتی تھی۔ میں اپنے روٹین کے مطابق اپنے دوستوں کے پاس ہی بیٹھا ہوا تھا شیرپا چوک میں۔ تقریباً رات کے 12:30 پونے 1 کا ٹائم ہو گیا، تو میں نے سوچا کہ مجھے گھر چلنا چاہیے، کیونکہ گلی نمبر 20 میں ہمارا گھر تھا اور وہ کافی زیادہ آگے جا کر بنتی ہے۔ پورا حصہ کراس کر کے محمدی کالونی والا مین چوک کراس کرنے کے بعد 20ویں گلی میں مجھے جانا تھا۔ میں نے اپنا سائیکل لیا اور اپنے دوست سے کہا کہ میں اب نکلتا ہوں یہاں سے۔ جب جیسے ہی میں بڑے مینار کے پاس پہنچا، اس کے بعد جب میں آگے جا رہا تھا، مجھے ایسا لگنے لگا کہ جس طرح سے مجھے پیچھے سے کوئی بار بار آوازیں دے رہا ہے، میرا نام لے کر اسلم اسلم کہہ کر مجھے کوئی بار بار بلا رہا ہے۔ پیچھے پلٹ کر دیکھتا تھا تو کوئی بھی نہیں ہوتا تھا، سنسان جگہ، بالکل لوگ جیسے سو گئے اپنے گھروں میں، دن بھر کے تھکے ہارے لوگ کام کاج کرنے کے بعد جلدی سو جایا کرتے تھے۔ میں چپ چاپ اپنا سائیکل چلاتا ہوا آگے آ رہا تھا، یہاں تک کہ مجھے راستے میں چوکیدار بھی نظر نہیں آیا۔ کبھی کبھار میری ملاقات چوکیدار سے بھی ہو جایا کرتی تھی، تو وہ بھی مجھے یہی کہتا تھا کہ ذرا جلدی آ جایا کرو، یہ سائڈ جو ہے نہر کی طرف سے ہو کر آتی ہے، تو یہاں پر تھوڑا بہت خطرہ بھی رہتا ہے، جنات کا بھی اور چور ڈاکوؤں کا بھی۔ میں نے اسے کہا کہ ٹھیک ہے۔ یہاں تک کہ میں محمدی کالونی والے مین چوک میں بھی پہنچ گیا۔ وہاں سے میں نے جیسے ہی رائٹ سائڈ پر ٹرن کیا، ہم لوگوں کے علاقے شروع ہو گئے۔ بس مجھے گلی نمبر 20 تک سائیکل چلاتے ہی جانا تھا۔ اب جب میں اس راستے پر آیا، پھر وہی کام شروع۔ بار بار مجھے پیچھے سے کوئی آوازیں دے رہا تھا، اور ایسے لگتا تھا جیسے آواز کوئی بہت دور سے دیتا ہے۔ آواز بھی کسی مرد کی تھی۔ 3-4 بار پیچھے پلٹ کر دیکھا، کوئی نظر نہیں آتا تھا۔ میں بڑا پریشان کہ آج سے پہلے تو ایسا کبھی نہیں ہوا، آج میرے ساتھ ایسا ہو کیوں رہا ہے۔ پھر میں وہاں سے آگے میں نے تھوڑا سا سائیکل تیز کیا۔ اب میں تھک بھی گیا تھا، آج میری طبیعت بھی کچھ ٹھیک نہیں تھی، تو میں چلاتا چلاتا تقریباً گلی نمبر 18 تک پہنچ گیا۔ 18 نمبر گلی تک جب میں پہنچا تو مجھے گلی نمبر 18 سے آواز آئی جیسے میرا کسی نے نام دیا ہے۔ میں نے سائیکل روکا اور باقاعدہ دیکھا تو دور مجھے کونے میں کوئی آدمی کھڑا ہوا نظر آیا۔ میں نے اس کو آواز دے کر کہا کہ کون ہو، مجھے کیوں بلا رہے ہو؟ اس نے کوئی جواب نہیں دیا، وہ جیسے کھڑا تھا وہ ویسے ہی کھڑا رہا۔ میں بڑا حیران ہوا کہ پتہ نہیں کون ہے کون نہیں ہے۔ میں نے سوچا کہ صبح دیکھوں گا، رات بہت ہوگی، مجھے گھر چلنا چاہیے۔ جیسے ہی میں اپنی گلی میں داخل ہوا، اب ہماری گلی میں داخل ہوتے ساتھ سٹارٹ میں تھوڑا سا اندھیرا ہوتا تھا، کیونکہ وہاں پر 2-3 گھر خالی تھے، اور بالکل شروع پر کونے پر دکانیں تھیں، وہ بھی بند تھی، ان کی بھی لائٹ بند تھی۔ جیسے ہی 2-3 گھر چھوڑ کر آگے آتے تھے، گلی میں بلب لگے ہوئے تھے کچھ گھروں کے آگے۔ ہم لوگوں کا گھر جو تھا تقریباً درمیان میں بنتا تھا۔
वो गली खासी लंबी है। अपनी गली में पहुंचकर मुझे बकायदा तौर पर ऐसा लगा मुझे फिर किसी ने पुकारा है, और मैंने जब गौर किया तो सामने से कोई चलता हुआ आ रहा था। मैंने साइकिल रोका, मैंने कहा कौन है भाई, कौन मुझे आवाजें दे रहा है। ऐसे लग रहा था वही आदमी है जो गली नंबर 18 में खड़ा था। वो इतनी जल्दी यहाँ पर कैसे पहुंचा मुझे समझ में नहीं आया। वो आदमी जैसे बिल्कुल चलता चलता हमारे घर से थोड़ा दूर आकर एक घर के सामने खड़ा हो गया और मेरी तरफ कमर कर ली। उस आदमी का जो हुलिया था, जो उसकी हाइट थी, जिसामत थी, कपड़ों का रंग हूबहू मेरे जैसा था। ऐसे लग रहा था जैसे सामने मैं खड़ा हूं और मैं खुद को ही आईने में जैसे देख रहा हूं। तभी मैंने फिर पूछा कि कौन है वहां पर। जब वो आदमी पलटा मेरी तरफ, वो हूबहू मेरे जैसा था जैसे मेरा हम शक्ल हो। मैं उसे देखकर डर गया। मैंने कहा कौन हो तुम? उसने मेरी बात का जवाब नहीं दिया। मैंने अपने घर का दरवाजा खोला और मैं अंदर आ गया। मैं बहुत ज्यादा डर गया। साइकिल खड़ा किया, गेट मैंने पहले ही बंद कर लिया। साइकिल खड़ा करने के बाद मैंने थोड़ा सा गेट खोलकर जब बाहर देखा तो आदमी गायब हो चुका था। मैं बहुत ज्यादा शदीद डर गया कि ये मैंने अपनी आंखों से क्या देखा है। वो बहू मेरे जैसा कोई और कैसे हो सकता है? ये कौन है जो मेरा हमशक्ल मेरे सामने आकर खड़ा हो गया, कपड़े भी मेरे जैसे, एज भी मेरे वाली। फिर मुझे लगा शायद मैं बहुत वहम कर रहा हूँ, तबीयत भी ठीक नहीं है, इसलिए मुझे वसवसे पड़ रहे हैं। सब घर वाले सोए हुए थे। बस मेरे अंदर जाकर थोड़ी वो जब आवाज आई तो मेरी मिसेस जाग गई और कहने लगी कि क्या मसला है, बार बार गेट की तरफ क्यों जा रहे हो, खैर तो है? मैंने से कहा कि नहीं कुछ नहीं है। सिर्फ से खाने वाने का पूछ। मैंने से कहा कि नहीं, मुझे भूख नहीं है। भूख तो मेरी उड़ चुकी थी जो कुछ मैं बाहर देख कर आया था। और मैंने उसे कहा कि सो जाओ। मैं बाथरूम वगैरह से फ्रेश होकर हाथ मुंह धोकर जाकर बिस्तर पर लेट गया। गर्मियों का मौसम था, हम लोग बरामदे में ही सोते थे। सब गर्मी होती थी लेकिन हमारा घर खुला था। हम लोग सो गए सारे। मुझे नींद नहीं आ रही थी। मेरे दिमाग के आगे, जैसे आंखों के आगे, वो सारा सीन चल रहा था जो मुझे आवाजें देता आ रहा था। पहले वो गली नंबर 18 में खड़ा था, फिर वो गली नंबर 20 में जब आया तो वो मेरे जैसा कौन था? इन्हीं सोचों में गुम मैं सो गया। सुबह मेरी आंख खुली, मुझे बड़ा सा बुखार था। तो मैंने अपनी मिसेस से कहा कि मेरी तबीयत नहीं ठीक, आज मैं दुकान पर नहीं जाऊंगा। मेरे पास से इसने देखा तो मुझे बुखार था। उसने थोड़ा बहुत नाश्ता करवाया और कहा कि डॉक्टर से दवाई लेकर आओ। मैं वहीं से निकला। हमारे मोहम्मदी कॉलोनी चौक में ही एक डॉक्टर का क्लिनिक था, वहां पर गया, उनसे दवाई वगैरह ली, बुखार चेक करवाया। बुखार भी काफी ज्यादा था, 102 बुखार था। उन्होंने भी ये कहा कि रेस्ट करो। मैं घर वापस आ गया। थोड़ी देर के बाद मैंने मेडिसिन ली, मुझे नींद सी आ गई, मैं सो गया। तकरीबन 1-2 घंटे मुझे होश ही नहीं था कि मैं कहाँ पर हूँ कहाँ पर नहीं। जैसे मेरी आंख खुली तो ऐसा लगा कि जैसे मेरी बीवी बड़ा ऊंचा ऊंचा बोल रही है, बहुत ज्यादा चिल्ला रही है। मैं बड़ा परेशान हुआ कि खैर वो पता नहीं क्यों इतना चीख रही है, चिल्ला रही है। मैंने हिम्मत की, मैं बाहर निकला। बच्चे भी स्कूल से नहीं आए थे। तो वो छत पर थी और बार बार ये कह रही थी कि मैं आपको कब से कह रही हूँ ऊपर ना जाएं, आपकी तबीयत ठीक नहीं है, आप क्यों ऊपर वाले कमरे में चले गए? वो बार बार ये कह रही थी। मैंने जब ये बातें सुनी मुझे ऐसा लगा वो मेरे से बातें कर रही है। मैंने अपनी बीवी को आवाज दी। मैंने से कहा कि फौजिया नीचे आओ, किससे बातें कर रही हो? जैसे उसने मेरी आवाज सुनी उसने ऊपर से झांक कर देखा और कहने लगी ये क्या, आप नीचे कैसे आ गए? मैंने से कहा कि क्या मतलब नीचे कैसे आ गए? नीचे आओ, जल्दी आओ। वो तो भागी भागी नीचे आई और बड़ी खौफ से था। मैंने से कहा कि क्या हुआ है? उसने कहा कि मैं अभी किचन में खाना बना रही थी कि बच्चों के आने का टाइम होने वाला है, इतने में आप अपने कमरे से निकले हैं और आकर जैसे सामने किचन में खड़े होकर मुझे देखा है तो छत की तरफ जाने लगे। मुझे लगा आपकी तबीयत ठीक नहीं है। मैं आपके पीछे भागी और आपको ये कहने लगी कि ऊपर ना जाए, आपको बुखार है, ऊपर गर्मी है। मेरे सामने आप ऊपर वाले कमरे में गए और आपने दरवाजा गुस्से से बंद कर लिया है। मैंने 2-3 दफा दरवाजा भी खटखटाया लेकिन दरवाजा तो अंदर से बंद था, फिर आप नीचे कैसे आ गए? मैंने से कहा मैं तो उठा ही नहीं, मैं तो अब जागा हूं, मेरी तो अब आंख खुली है, तुम्हारे ही शोर से मेरी आंख खुली है जो तुम ऊंचा ऊंचा बोल रही हो। उसने कहा कि ऐसा हो ही नहीं सकता, मैं क्यों झूठ बोलूंगी, मैं इतनी तो बेवकूफ नहीं हूं कि मैं झूठ बोलूंगी, मैंने खुद आपको देखा है, यही कपड़े, यही हुलिया। मैंने से कहा कि ये सब कुछ तो मैंने रात को भी देखा है, मेरे साथ भी यही सब कुछ हुआ है। जैसे मैंने ये कहा वो चौंक पड़ी और कहने लगी क्या मतलब,
आपके साथ भी ये सब कुछ हुआ है। मैंने फिर उसको रात वाला सारा किस्सा बताया। वो तो बहुत ज्यादा डर गई। उसने कहा कि जल्दी से किसी बुजुर्ग को बुलाते हैं या उनके पास जाते हैं, ये बात तो ठीक नहीं है, बच्चे भी अभी आ जाएंगे, तो ये तो हमें बात किसी से लाजमी डिस्कस करनी चाहिए। अब उधर ममदी कॉलोनी में ही हमारे एक रिश्तेदार भी रहते थे, मेरे कजन ही थे। उन लोगों का घर गली नंबर 17 में था। मैंने अपने कजन को फोन किया, मेरा कजन आ गया। मैंने अपने कजन को कहा कि इस तरह से रात को मेरे साथ हुआ और अब इसके साथ भी हुआ है, तो अब हम लोग क्या करें, हमें तो बहुत डर लग रहा है। पहले वो हंसा, उसने कहा ऐसे हो कैसे सकता है। हमने उसे कहा कि ये हंसने की बात नहीं है, हमारे साथ ये सब हो रहा है और तुम हंस रहे हो। उसने कहा कि नहीं, बात ही बड़ी अजीब है। उसने कहा कि चलो मेरे साथ चलो, यहाँ पर सेटलर टाउन में एक है बुजुर्ग, उनके पास चलते हैं, उनसे जाकर सारा मसला डिस्कस करते हैं। मैंने उसे कहा कि ठीक है। मेडिसिन लेने से कुछ मेरी तबीयत बेहतर हुई। मैंने अपनी मिसेज से ये कहा कि अब मैं इसके साथ जा रहा हूँ, घर में तुम्हें मेरे रूप में कोई भी नजर आए तुमने उससे हम कलाम नहीं होना। उसने कहा कि ठीक है। वो भी बड़ी डरी हुई थी। मेरे कजन की बीवी भी साथ ही आ गई, वो भी उसके पास ही थी। हम लोग निकल गए सेटलर टाउन। सेटलर टाउन गए, वहां पर एक मुफ्ती साहब थे, उनसे मिले। उनके पास कुछ आदमी थे, वो आदमी उठ करके उनको सारा मसला बताया। मुफ्ती साहब ने कहा कि वो एक जिन है, वो जिन है जो तुम्हारा रूप लेकर तुम्हारे सामने भी आया। तुम जिस रास्ते से गुजर कर आ रहे थे, ममदी कॉलोनी वाला वो जो रास्ता है, जो कच्चे वाला रास्ता है, वहां पर बहुत ज्यादा सख्त जिन्नात का बसेरा है। वहां पर यहाँ तक के चुड़ैलों आफ्तों का भी बसेरा है। इतनी रात को मत आया करो। लेकिन तुम्हारे पीछे जो मखलूक है वो जिन है, और ये पहले भी तुम्हारे पीछे इसने आने की कोशिश की है, लेकिन तुम हर बार बच जाते हो। क्या कभी तुम्हें ऐसा महसूस हुआ है पहले भी? उसने कहा कि नहीं, एक दो दफा ही महसूस हुआ था, जैसे कोई पीछे भाग कर आता है। तो मैंने एक दो बार गौर किया, मुझे कोई नजर नहीं आया, फिर मैं ध्यान नहीं देता। उन्होंने कहा कि तुम्हारे पीछे ये पहले भी आया है और ये बड़ा सख्त और जालिम जिन है। ये बहुत ज्यादा नुकसान देता है, तंग करता है। अगर ये उस इंसान के रूप में आए तो उनके घर वालों को बहुत ज्यादा सताता भी है। ये वो काम कर जाता है जो असल इंसान ने नहीं किए होते। मैं तो और डर गया। मैंने उसे कहा कि मेरे पीछे ही क्यों है। उन्होंने कहा एक तो इसका इस गली में बसेरा है, दूसरा जिस घर में तुम ठहरे हो, जो घर तुम लोगों ने लिया है, इसका वहां पर भी बसेरा है। एक कमरा ऐसा है जहां पर इसका बसेरा है। तो मैंने उन्हें बताया कि मेरी बीवी ने इसको ऊपर वाले कमरे में ही जाते देखा है, जो मेरे रूप में था। उनका ये कहना है जिस दिन के तुम लोग इस घर में आए हो, तुम लोगों को घर में कोई आहट वगैरह महसूस हुई? हमने उन्हें कहा कि जी, रात के वक्त आहट तो महसूस होती है, जैसे दरवाजा खुलता है, कभी खिड़की खुलती है, हल्की फुल्की से कदमों की चाप भी सुनाई देती है। हमें ये लगता है कि जैसे घर बिल्कुल साथ साथ है, छत साथ साथ है, तो शायद साथ वाले हों, इसलिए हमने गौर किया। नजर आज से पहले कोई नहीं आया, लेकिन एक दफा मेरा बेटा है 6 साल का, उसने हमें सुबह उठकर बताया था, वो बड़ा रो रहा था और उसके बाद वो 2-3 दिन बीमार भी रहा है। उस वक्त हमें इस घर में आए अभी 15 दिन हुए थे। तो बच्चे ने ये कहा कि पापा का कद बहुत लंबा है और पापा हवा में सहन में खड़े थे और मुझे बुला रहे थे, लेकिन पापा का चेहरा बहुत डरावना था। ये उस बच्चे ने हमें बताया। हमें लगा जैसे बच्चों को आदत होती है कहानियां बनाने की, तो ये वो बना रहा है। उसके बाद वो 2-3 दिन बीमार भी रहा। फिर हमने दवाइयां दी, दम शम किया तो वो ठीक हो गया। उनका ये कहना है बच्चे ने वो तुम्हारे रूप में ही उस चीज को देखा है। पहली बात तो ये जिन्नात किसी का रूप लेते नहीं है, लेकिन ये जिन्नात की वो किस्म है जो हूबहू किसी एक इंसान को चुन लेता है और उसका रूप बन के बार बार अपना आप जाहिर करता है और घर वालों को अपनी तरफ राग़िब करने की भी कोशिश करता है। अगर ये बाज़ औक़ात ये जिन्नात ऐसे भी होते हैं जो किसी औरत के शोहर का भी रूप ले लेते हैं। औरत को पता ही नहीं होता कि ये उनका शोहर है या वो जिन है। यहाँ तक भी ये मामला जा सकते हैं। तो हमने उनसे पूछा कि हमारी मदद करें, हम लोग क्या करें। उनका ये कहना था कि अभी फौरी तौर पर तो तावीज़ नहीं दिया जा सकता। अभी फौरी तौर पर तावीज़ दिया तो वो इस टाइम भी तुम्हारे घर में मौजूद है, बच्चों पर हमला कर देगा, तुम्हारी बीवी पर हमला कर देगा, शायद तुम्हें भी नुकसान दे। अभी उसकी मैं पढ़ाई करूंगा, मैं तुम्हें पानी दम करके देता हूँ, ये पानी अपने घर में ले जाओ और इसके छींटे अपने घर की दीवारों पर मारो, ऊपर वाले कमरे में नहीं मारने जहां पर उसका मेन बसेरा है, तो वो नीचे वाले हिस्से में नहीं आएगा।
3 दिन के बाद मैं तुम्हें एक तावीज़ दूंगा, वो तुम अपने घर में भी लगाना और गले में भी पहनना। उम्मीद है उससे ये पीछे हट जाएगा और तुमने देर रात ये घर वापस नहीं आना। कोशिश करो कि हद 9 या 10 बजे तुम अपने घर वापस आ जाओ। जब तक वो रास्ता आबाद होता है, जब तक उस रास्ते पर ट्रैफिक होती है, लोग चलते फिरते हैं। मैंने कहा कि ठीक है, मैं ऐसे ही करूंगा। उसके बाद मैं घर वापस आ गया। घर वापस आया, मेरा कजन भी साथ था। जब हम लोग घर आए तो वो लोग डरी हुई थी, कमरे में बैठी थी, दरवाजा बंद किया हुआ था। वो लोग कहते हैं कि आप लोगों के जाने के बाद सब कुछ ठीक था। जैसे बच्चे स्कूल से आए, खाना खाया, हम लोग इसी कमरे में बैठे थे और थोड़ी देर के बाद ऐसा लगा जैसे उसामा कहता है मुझे पापा बुला रहे हैं। पापा छत पर खड़े हैं और मुझे कह रहे हैं ऊपर आओ। तो मैंने उसे कहा कि नहीं, ऊपर नहीं जाना, इधर आ जाओ। तो मैंने बड़ी मुश्किल से इसे सुलाया। उसामा मेरा वही बेटा है जिसने 15 दिन, जब हमें आए हुए 15 दिन हुए थे तो उसने मेरे रूप में देखा था। हमने सारी बातें उनको बताई। अब वो पानी के छींटे हम लोगों ने अपने सहन की दीवारों पर, बरामदे की दीवारों पर और कमरे की दीवारों पर छींटे मार दिए। मुझे भी उन्होंने दम किया, मैं भी पहले से कुछ बेहतर था। अब मेरे कजन जो है वो शाम तक वहीं पर रुके, उसके बाद वो लोग भी चले गए। जैसे ही रात हुई हम लोग सारे बरामदे में ही सो रहे थे कि शायद पानी के छींटे मारे हुए, इंशाल्लाह कुछ नहीं होगा। तकरीबन रात 2-2:30 बजे का टाइम था। बाहर दरवाजे पर दस्तक होने लग गई, बहुत जोर जोर से, जैसे कोई दरवाजा खटखटा रहा है। अब आंख खुल गई हम लोगों की। पहले तो हम लोगों ने कहा कि नहीं देखते, पता नहीं कौन है कौन नहीं। फिर एकदम से हमने सोचा कि देख लेते हैं कि कौन है बाहर। मैं और मेरी मिसेज हम लोग दरवाजे तक आए, पूछा कि कौन है बाहर। एक बार पूछा, कोई जवाब नहीं आया। दूसरी बार पूछा तो हम लोगों के एक दूर पार के रिश्तेदार थे, तो उनमें एक बूढ़ी अम्मा थी। वो अम्मा जब जिंदा थी तो हमारे घर बहुत ज्यादा आती थी, हमारे घर आकर एक एक महीना रहते थे। जैसे ही हमने पूछा कि कौन है तो बाहर से उन्हीं अम्मा की आवाज, वो बार बार ये कह रही थी मैं अम्मा आई हूँ, दरवाजा खोलो। थक गई हूँ चल चल के, तुम लोग दरवाजा नहीं खोल रहे, जल्दी खोलो, मैं बड़ी थकी हुई हूँ। हम दोनों ने एक दूसरे के मुंह की तरफ देखा, ये कि अम्मा कैसे आ सकती है। अम्मा की तो डेथ हो गई है, उनका नाम जैनब था, अम्मा जैनब। हमने कहा कि अम्मा जैनब की तो डेथ हो गई है, ये कहां से आई है। उनको उस वक्त फोत हुए वे भी तकरीबन 10 साल हो गए थे। जब हम लोग पहले किसी घर में रहते थे वहां पर वो आती थी। हम लोग तो बहुत खौफजदा हो गए। हम लोग जल्दी से पीछे हटे, कुर्सी पड़कर अपने ऊपर फूकी, बच्चों पर फूकी। वो मुसलसल दरवाजा खटखटा रही थी और बार बार कह रही थी दरवाजा खोलो। कभी मेरा नाम लेती, कभी मेरी मिसेस का नाम लेती, कभी बच्चों का नाम लेती। बहुत हम लोग खौफजदा हुए। पूरी रात वो दरवाजे खटखटाती रही। पता नहीं किस पहर वो रात के वो पीछे हटी, वो गई शायद जिस वक्त फजर की आसान हुई। हम लोग जब गए मुफ्ती साहब के पास 3 दिन के बाद, हमने उन्हें भी ये बात बताई। उन्हीं 3 रातों में अगली रात हम लोगों के साथ ऐसा हुआ कि ऐसा लगे बार बार सहन में कोई पत्थर फेंकता है। हमारे सहन में कुछ गमले रखे हुए थे और जैसे वहां पर आम इस्तेमाल की चीजें होती हैं, वहां पर लोहे की भी कुछ चीजें रखी हुई थी। उन चीजों के ऊपर, उन डिब्बों के ऊपर जैसे कोई पत्थर मार रहा था। आंख खुल गई हम लोगों की आवाजों से, तो बार बार कोई पत्थर मार रहा था। यहाँ तक कि 1-2 पत्थर बरामदे में भी आए, लेकिन हमें लगे नहीं क्योंकि बरामदे के आगे वो शेड से बने हुए थे। अब अगली रात आखिरी रात थी। बच्चों को भी हमने कहा कि घर में कोई, हम लोग अगर घर में इस कमरे में बैठे हैं, कोई बाहर आपको बुलाए, कोई छत पर बुलाए पापा के रूप में या मैं नजर आऊं, पहले कमरे में आकर देखना है, फिर ऊपर जाना है, वैसे ऊपर नहीं जाना। बच्चे छोटे थे, समझा तो उनको दिया, लेकिन उसके बाद भी बच्चे हैं, क्या कह सकते हैं। शाम हो गई, शाम का वक्त था, तो बच्चे अंदर टीवी देख रहे थे। मैं भी उनके पास ही बैठा था। थोड़ी देर के बाद, जैसे बच्चों को आदत होती है शॉप से चीजें लेने की, तो उसामा जो है वो शॉप पर चीज लेने चला गया। वो कोने वाली दुकान से चीज ले आया करता था, खाने की चीज लेने चला गया। काफी देर हो गई, उसामा नहीं आया। हम लोग बड़े परेशान के कहाँ चला गया। मैं उठा, मैं बाहर निकला। बाहर वो शॉपकीपर ने ये बताया दुकानदार ने कि वो तो चीज लेकर उसी टाइम घर चला गया था, वो तो यहाँ पर रुका ही नहीं है, तो घर में ही होगा, आप लोग जाकर देखें। मैं भागा भागा घर आया। मैंने अपनी मिसेस को बताया कि उसामा तो उसी टाइम घर आ गया, किधर है वो।
अब हम लोग उसामा को आवाजें दे रहे थे। जो ही हमने तीसरी आवाज दी, उसामा के रोने की आवाज छत से आने लगी। उस वक्त मगरिब के बाद का टाइम था। हम लोग भागे छत पर। जब हम लोग छत पर गए, वो छत पर कोने पर एक बाथरूम था। उस बाथरूम में उसामा बंद था, बाहर से कुंडी लगी हुई थी। हम लोगों ने कुंडी खोली, उसको बाहर निकाला। बच्चे की हालत ऐसी थी जैसे बेहोश हो जाएगा। आधा घंटा हो गया था। हमने उसे उठाया, हम उसे नीचे लेकर आए। हमने उसे कहा कि ऊपर कैसे आ गए हो? उसने कहा कि पापा ऊपर लेकर आए हैं। मैं घर आ रहा था, पापा दरवाजे में खड़े थे और मुझे कहते आओ ऊपर बैठकर चीज खाओ, नीचे गर्मी है। पापा मुझे ऊपर ले गए थे और फिर मैं बाथरूम में गया तो पापा ने दरवाजा बंद कर दिया। पापा भी बाथरूम में खड़े थे, लेकिन फिर पापा गायब हो गए। वो इतना बच्चा सहमा हुआ डरा हुआ था, उसे देखकर हम लोग और डर गए कि अब हम लोग क्या करें, ये तो बहुत भयानक काम शुरू हो गया। अल्लाह अल्लाह करके वो 3 दिन गुजरे। हम लोग दोबारा मुफ्ती साहब के पास गए। मैं उसामा को भी साथ ले गया। उसामा ने भी सारी बातें बताई। तो मुफ्ती साहब का ये कहना था, ये बात मैंने तुम्हें पहले ही बताई है कि वो उस घर में मौजूद है, इसलिए फौरन तावीज नहीं दिया था। अगर देता तो उसने बच्चों को भी नुकसान देना था और तुम लोगों को भी। अभी भी वो वहां पर, वो तुम्हारे पीछे लगा हुआ है। तुम्हारे घर में भी उसका बसेरा है, उस रास्ते पर भी उसी का बसेरा था। तो जब तुम उसी जगह पर आए जहां पर उसका मेन ठिकाना था, तो उसने तुम्हारा ही रूप धार लिया, तुम्हें ही नुकसान पहुंचाने के लिए। जब ये किसी इंसान का रूप लेते हैं तो इनकी ये कोशिश होती है कि उस इंसान को मार दे जान से, और फिर एक जिन ही इंसान के रूप में जिंदगी गुजारे। यहाँ तक भी ये जिन्नात इस हद तक भी इंसानों को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करते हैं। उन्होंने उसामा को भी दम किया। बच्चा बड़ा ऐसे सहमा सहमा सा था और खौफजदा था बाथरूम में बंद रहने के बाद। हिफाजत के उन्होंने तावीज दिए, मुझे भी दिया, मेरे बेटे के लिए भी दिया, उसके गले में भी हमने पहनाया। हम लोग घर आए। वो मुफ्ती साहब ने हमें खबरदार किया कि छत पर नहीं जाना, 11 दिन छत की तरफ मत जाना, कोई आवाज आए कुछ भी हो ऊपर नहीं जाना। हमने उन्हें कहा कि ठीक है। उन्होंने कहा कि इंशाल्लाह अब ये घर में नजर नहीं आएगा। अगर इसका ऊपर बसेरा भी है तो इन तावीज़ों के असर से नीचे नहीं उतर सकेगा। एक हमने लगाना था सीढ़ियों में, बाकी बरामदे में, और एक हम सब ने गलों में पहनना था। ये तावीज़ उन्होंने दिए। हमने ये भी बताया कि वो हमारी एक अम्मा थी, तो वो फौत हो गई हैं। उनके रूप में भी ये मखलूक आई है हमें तंग करने के लिए। उनका ये कहना था कि अकेला नहीं है, इसका पूरा घराना होता है, तो कोई भी आकर तंग करने की कोशिश करता है। जिस घर में ये रहते हो वहां के ऊपर इंसान आकर रहे तो ये ऐसे सताते हैं, तंग करते हैं। वापिस आके हम लोग, अब मैंने फिर काम पर जाना शुरू कर दिया। तावीज पहनने के बाद, घर में लगाने के बाद कुछ दिन तो बड़ा सुकून रहा। कोई आवाज नहीं आती थी, कोई पत्थर नहीं आते थे। उसामा ने भी डरना छोड़ दिया, मैं भी नॉर्मल हो गया। एक रात तकरीबन 11 बज गए मुझे वापस आते आते। रास्ते में मुझे कुछ दोस्त मिल गए, उनके पास मुझे देर लग गई। 11 बजे जैसे ही मैं उसी रास्ते की तरफ आया तो थोड़ा सा मेरा जिस्म भारी सा हुआ, ऐसे लगे जैसे कोई बोझ सा पड़ गया खौफ से। मैं तेजी से वहां से अपना साइकिल लेके आगे निकला तो अपनी गली में आया तो क्या देखता हूँ कि जिस तरह से उसी सड़क के ऊपर था, भी मैं गली नंबर 20 आनी थी। एक औरत है और वो बड़ी तेजी से भागती भी जा रही है, बिल्कुल आगे की तरफ जा रही है भागती हुई बड़ी तेजी से। मुझे बड़ा अजीब लगा कि औरत कौन भाग रही है ऐसी गली में। यहाँ तक कि मैं अपनी गली के करीब पहुंचा तो उसकी स्पीड देखने में इतनी तेज लग रही थी, लेकिन भाग ऐसे रही थी जैसे हम चलते हैं। गली नंबर 20 में दाखिल हो गई वो। मैंने साइकिल तेज किया कि गली नंबर 20 में क्यों कोई औरत ऐसे भाग कर गई है। जैसे मैं गली नंबर 20 में मुड़ा, वहां पर कोई औरत नहीं थी, वो गायब हो चुकी थी। मैं अपने घर पहुंचा, घर का गेट खुला था। मैंने कहा कि गेट क्यों इस टाइम रात में खुला हुआ, बच्चे छोटे छोटे हैं। तो वो मेरी मिसेस कहती है कि अभी साथ वाली आंटी आई थी तो इसलिए मैंने गेट खोला है, तो शायद इनको बंद करना भूल गया होगा। इतने में जब मैं अंदर दाखिल हुआ, मैंने अपना साइकिल खड़ा किया तो जैसे ही दहलीज से बाहर आते थे तो राइट साइड पर सीढ़ियां थी। एकदम मेरी नजर पड़ी जैसे सीढ़ियों में कोई है, तो मैंने देखा सामने वो जो औरत गली में भाग कर आ रही थी, वो औरत सामने कोने में खड़ी थी। उसका इतना खौफनाक चेहरा था और आंखें चमक रही थी। मेरी चीख निकल गई कि ये कौन औरत है। मैंने उसे कहा कि कोई औरत खड़ी है सीढ़ियों में। भागी भागी आगे आई तो वहां पर कोई भी नहीं था। अब हिफाजत के तावीज के बाद वो जिन तो नहीं आ सका,
یہ کوئی اور مخلوق تھی جو شاید وہاں پر آنے کی اس نے کوشش کی. میں نے اس کو گلی میں بھاگتے دیکھا, گیٹ کھلا تھا. ہم لوگ تو بہت زیادہ ڈر گئے کہ اب ہم لوگ کیا کریں. وہ جیسے چھت کے اوپر سے تھوڑی بہت چلنے کی آہٹیں آئی, لیکن نیچے ہمیں کوئی نظر نہیں آیا. میں تقریباً آدھی رات تک جاگتا رہا کہ بچوں پر کچھ نہ ہو. بچے بھی سکون سے سوئے ہوئے تھے. میری مسز نے کہا کہ اس کے بعد تو کوئی آواز بھی کبھی نہیں آئی, ہلکی سی بھی, نہ ہی کوئی نظر آیا. پہلے تو بیٹھنا ہی محال ہوتا تھا, ایک ایک منٹ کے بعد آوازیں آتی تھی, جیسے آپ بول رہے ہیں. گھر میں بھی نہیں ہے تو کبھی چھت سے آواز آتی جیسے کوئی فون پر بات کرتا ہے, اب وہ بھی نہیں آ رہی. تو یہ عورت کہاں سے آ گئی ہے. تھوڑے سے اور ہم لوگ ڈر گئے. اگلے دن صبح جاگے تو ہم نے تو اب چھت پر جانا نہیں تھا. 11 دن پورے انہوں نے منع کیا ہوا تھا. ابھی جس دن ہمیں وہ عورت نظر آئی تھی اس دن ابھی 5واں دن تھا. موسم بڑا سا خراب تھا, جیسے آندھی طوفان بنا ہوا تھا. اب چھت پر کمرے کے دروازے بھی کھلے تھے, سامان بھی, چارپائیاں بھی باہر پڑی تھی. میں نے اپنی مسز سے کہا جو کچھ ہوتا ہے ہونے دو, سامان خراب ہوتا ہے, جو بھی ہوتا ہے, ہم نے اوپر نہیں جانا. اس نے کہا ٹھیک ہے. اتنے میں تیز بارش شروع ہو گئی. ہم لوگوں نے کمرے میں چارپائیاں بچھائیں. برآمدے تک بارش کی بوندیں آتی تھی. بچے بھی سو گئے. رات تقریباً 12:30 بجے کا ٹائم تھا. ہم لوگ بیٹھے باتیں کر رہے تھے, میں اور میری مسز. ہمیں واضح طور پر ایسے لگا جس طرح سے ہم لوگوں کی چھت کے اوپر کوئی عورت بول رہی ہے. وہ کیا بول رہی تھی ہمیں کوئی آواز نہیں آ رہی تھی, لیکن مسلسل کوئی جیسے سیڑھیوں کے پاس آ کر کچھ بولتا ہے اور پیچھے ہٹ جاتا ہے. جب ہم لوگوں نے آوازیں سنی ہم لوگ ڈر گئے. ہم لوگوں نے کمرے کا دروازہ بند کیا, کھڑکیاں کھلی ہوئی تھی. ہم لوگ سو گئے, سونے کی کوشش کرنے لگے, آنکھ لگی, سو گئے. اگلے دن اٹھے تو سب نارمل تھا. میں مفتی صاحب کے پاس گیا. میں نے انہیں بتایا کہ جب سے وہ تعویذات لگائے اور پہنے ہمیں کسی چیز نے تنگ نہیں کیا, یہاں تک کہ الحمدللہ کچھ نظر بھی نہیں آیا. لیکن میں نے ایک عورت کو دیکھا, وہ گلی میں بھاگتی ہوئی آ رہی تھی. 11 بجے کا رات کا ٹائم تھا. اسی عورت کو میں نے اپنے گھر میں بھی دیکھا ہے, اور ایسی آوازیں آ رہی تھی کل بارش کی رات میں جیسے کوئی عورت سیڑھیوں میں آ کر کچھ اونچا سا بولتی ہے اور چلی جاتی ہے. مفتی صاحب نے پڑھائی کی تو ان کا یہ کہنا تھا کہ وہ تعویذات لگانے کی وجہ سے وہ جن وہاں پر قید ہوا پڑا ہے اس کمرے میں. نہ وہ نیچے آ سکتا ہے سیڑھیوں میں, جو کہ حصار باندھا ہے میں نے تعویذات کے ذریعے, نہ وہ وہاں سے نکل پا رہا ہے. اب یہ اسی کے خاندان کی قبیلے کی جنی ہے جو عورت کے روپ میں اپنا آپ ظاہر کر رہی ہے. اور یہ سیڑھیوں میں تمہیں نظر آئی ہے, لیکن یہ سیڑھیوں سے اوپر گئی نہیں ہے. یہ مخلوقات ہیں, ان کا قد بہت دراز ہو جاتا ہے. یہ ڈائریکٹ باہر سے اندر آئی ہے, اس لیے بار بار تنگ کر رہی ہے کہ تم لوگ سیڑھیوں والے تعویذات اتار دو. ابھی تو یہ تم لوگوں کو سمجھ نہیں آ رہی. ابھی یہ خواب میں نظر آ کر کہے گی کہ تعویذات اتار دو, ہم تنگ ہو رہے ہیں. تم لوگ کوشش کرو کہ تم لوگوں کو کوئی اور گھر مل جائے. یہاں پر یہ مخلوقات تمہیں نقصان دیں گی, کیونکہ میں نے پہلے بتایا یہ کوئی ایک نہیں ہے, یہ بہت سے ہیں. اور جب تک سیڑھیوں میں وہ تعویذ لگا ہوا ہے, وہ جن جو ہے اس کمرے سے بھی باہر نہیں آ سکتا. آتا جائے گا تو جل کے راکھ ہو جائے گا. اس لیے وہ عورت بھی ہے جو سیڑھیوں تک آتی ہے, کچھ بول کر واپس چلی جاتی ہے. بس تم لوگ کوشش کرو کہ تم لوگوں کو کوئی گھر مل جائے. 41 دن ہے تم لوگوں کے پاس گھر بدلنے کے لیے, دن رات ایک کر دو. ہم لوگ وہاں سے واپس آئے. میں نے ساتھ ہی ڈیلرز کو کہنا شروع کر دیا, خود بھی کوشش شروع کر دی کہ ہمیں کوئی گھر مل جائے. یہاں تک کہ میری بڑی کوشش کے بعد ہمیں گلی نمبر میرے خیال سے 13 تھی, گلی نمبر 13 میں ایک گھر کا پتہ چلا. وہاں پر میں گیا, اس گھر کو دیکھا. وہ گھر اس گھر سے چھوٹا تھا لیکن صاف بنا ہوا تھا. میں نے فائنل کر دیا. تقریباً 6 دن لگے تھے وہ گھر ڈھونڈنے میں. 6 دن میں بھی بس عورت کی آوازیں آتی تھی, نظر کو نہیں آتی تھی. بولتی بہت زیادہ تھی, رات بھر جیسے چھت پر بولتی تھی. 1-2 بار رونے کی بھی آوازیں آئیں. 1-2 بار ایسا لگا کہ جیسے وہ تالیاں بجاتی ہے, رات میں تالی بجنے کی آواز آتی تھی. خیر ہم لوگوں نے وہ گھر فائنل کیا, سامان اٹھانا شروع کر دیا. جب سامان اٹھا کر گھر خالی کیا تو ہم نے سیڑھیوں والا جو تعویذ تھا وہ اتار دیا کہ یہاں پر جو بھی چیز قید ہے وہ یہاں سے نکل جائے, آنے والوں کو نقصان نہ دے. باقی جو تعویذات تھے وہ ہم نے لگے رہنے دیے کہ جو بھی اگر اس گھر میں دوبارہ آئے گا تو یہ مخلوقات اس کو نقصان نہ دے. ہم لوگ گلی نمبر 13 میں شفٹ ہو گئے. گلی نمبر 20 سے گلی نمبر 13 میں 7 گلی پہلے ہم لوگوں کا گھر آ گیا. یہ گھر جو تھا یہ بالکل اینڈ میں کونے والا تھا. وہاں پر ہم لوگ
शिफ्ट हो गए। जैसे ही आधी रात का टाइम हुआ, मुझे ऐसा महसूस होने लगा जैसे मेरा कोई गला दबा रहा है। इधर मेरी आंख खुली तो कोई भी नहीं था। खौफ सा तारी हो गया मेरे दिमाग पर। मैंने फिर आयतल कुर्सी पड़ी, मैंने चेक किया तो मैंने तावीज़ उतारा हुआ था। बस कहीं कपड़े बदले तो वो उस पॉकेट में रह गया। मैं फौरन से उठा, मैंने उसमें से तावीज़ उतारा और अपने गले में पहन लिया। उसके बाद थोड़ी ही देर गुजरी तो ऐसा लगने लगा कि जिस तरह से बाहर सहन में कोई चारपाई को घसीट रहा है। 2 बार किसी ने चारपाई को घसीटा बकायदा। मैं डर गई कहीं कोई चोर ना हो। मैं उठा, मैंने फौरन से बाहर जाकर देखा, बाहर कोई भी नहीं था। लेकिन सहन में रखी हुई जो चारपाई थी वो टेढ़ी हुई थी और एक कोने की तरफ उसका रुख था। मैंने उस चारपाई को सिर्फ हाथ भी नहीं लगाया क्योंकि मैं चाहता था कि मुफ्ती साहब जो कहेंगे मैं वो करूँगा, कहीं मुझे नुकसान ही ना दे दे। अगले दिन मैंने ये बात अपनी मिसेस को भी बताई तो मेरी मिसेस ने कुर्सी पढ़कर उस चारपाई को उठाकर खड़ा कर दिया। मैं उसे मना करता रह गया लेकिन उसने मेरी नहीं सुनी। इसी तरह से तकरीबन 1-2 रातें गुजरी। फिर से हमें सहन में किसी की आहट महसूस होने लग गई। ऐसा लगने लगा जैसे सहन में कोई चलता है। हम लोग सारे सोए हुए होते थे अंदर कमरे में और बाहर से किसी के चलने की आहट महसूस होती थी। हम परेशान कि हमने घर भी बदल लिया है, फिर भी ये मामलात नहीं रुक रहे। अब हम लोग क्या करें? बड़ी मुश्किल से वो रात गुजारी। रात गुजारने के बाद फिर से खौफ में मुब्तला अगले दिन फिर मुफ्ती साहब के पास गए। मुफ्ती साहब ने कहा कि वो चीज़ें तुम्हारे पीछे हैं, तुम्हें मैंने पहले बताया था, तुमने वो तावीज़ात उतार के इस घर में लगाने थे, तुम वो तावीज़ात वहीं पर छोड़ आए हो। अब जाओ, वो हिसार वाले तावीज़ात हैं, उनको वहां से उतारो और लाकर जैसे इस घर में लगाओ ताकि वो तुम्हारे पीछे ना आए। फिर मैं वापस आया, मैंने डीलर से बात की। अभी वो घर रेंट आउट नहीं हुआ था, बंद ही था। उसने कहा ठीक है। मैंने उसे कहा कि कुछ सामान रह गया, मुझे चाबियाँ चाहिए। उससे मैंने वो उस घर की चाबी ली। मेरी मिसेस मेरे साथ थी। हम लोग वहां से सीधा उस पुराने घर पर आए। जैसे हम लोगों ने घर का दरवाज़ा खोला, अंदर दाखिल हुए, घर में ऐसे था इतनी मिट्टी है सहन में, और जो वहां पर हम लोग कोई पुरानी चीज़ें छोड़ कर आए थे वो सारी जैसे किसी ने जमा करके कोने में रखी हुई थी। जैसे ही हम लोगों ने वो तावीज़ात उतारे जो बरामदे में लगाए हुए थे, कमरे में लगाए हुए थे, वो सारे तावीज़ात हम लोग जैसे ही उतारते गए, गेट के पास वाला भी बाकायदा तौर पर ऐसे लगा जैसे छत के ऊपर बहुत गुस्से से किसी ने ईंटें फेंकी हैं, जैसे बहुत ज्यादा ईंटें एकदम से दीवार पर रखी और नीचे गिर जाए, ऐसी आवाज आई। हम लोग तो फौरन तावीज़ात लेकर वहां से निकले, आकर हमने अपने नए घर में लगाए। वो तावीज़ात लगाने के बाद अल्लाह का शुक्र है दोबारा हमें उस घर में कोई आहट महसूस नहीं हुई। मैं मुफ्ती साहब के पास गया, उन्हें बताया, उन्होंने कहा कि शुक्र करो तो वहां से तावीज़ात लेकर निकल आए थे, वरना उसने हमलावर भी हो जाना था। वो वहां पर मौजूद थे। और अब इस घर में लगाओ ताकि तुम्हारे पीछे ना आ सके। फिर उस घर में तावीज़ात लगाए, वहां पर हम लोग सुकून से रहने लगे। लेकिन जब भी मैं उस रास्ते से गुजर कर आता था, मुझे अपने पीछे से आवाज जरूर आती थी, लेकिन मैं पलट कर नहीं देखता था। आज भी हम लोग मोहम्मदी कॉलोनी वाली साइड पर ही रहते हैं, लेकिन अब हम लोगों ने घर थोड़ा और तरफ ले लिया है। तो ये मेरी एक कहानी थी। इस तरह से जिन ने हमारी जिंदगी पर असर किया, जो मैंने आपके साथ शेयर की। बहुत शुक्रिया असलम आपका। जिससे बहुत से लोगों की जिंदगी में बहुत से जिन्नात के मामलात वाक़यात हो जाते हैं। अल्लाह से रहम मांगना चाहिए। कोई भी नहीं चाहता कि उनकी जिंदगी में ऐसे मामलात हो। कोई भी जानबूझकर इन चीज़ों की तरफ नहीं आता, लेकिन बाज़ औक़ात ये जिन्नात इतने सख्त होते हैं, इनका इतने सख्त बसेरे होते हैं, इनके इतने सख्त असरात होते हैं कि ये इंसानों को डराते भी हैं, उनकी ज़िंदगी पर असरअंदाज भी होते हैं, उनको बहुत बहुत नुकसान भी देते हैं। अल्लाह कभी ना करे आप लोगों को ऐसा महसूस हो कि जिस घर में आप रहते हैं वहाँ पर कोई ऐसी मखलूक़ात है, तो फ़ौरन जो साहिब हजरात हैं उनसे रब्ता करना चाहिए, उनके पास जाना चाहिए। क्योंकि अक्सर मैंने लोगों से सुना है कि ऐसे घर होते हैं जहाँ पर उनको अपने ही घर वालों के रूप में ये मखलूक़ात नजर आती हैं, और वो लोग उस टाइम या तो किसी और कमरे में बैठे होते हैं या वो लोग घर में ही नहीं होते। अक्सर लोगों से मैंने ये चीज़ें सुनी और मैंने बहुत सी अपनी कहानियों में ये चीज़ें शेयर भी की हैं। ऐसे घर बहुत खतरनाक और बहुत ज़्यादा बीमारी वाले होते हैं, और अल्लाह कभी ना करे वहाँ पर अक्सर ऐसे घर मौत ज़दा भी होते हैं।
अल्लाह से रहम मांगना चाहिए। ये स्टोरीज महज सुनने की हद तक नहीं, आप लोगों के लिए इनमें मैसेज भी होता है, नॉलेज भी होता है। ये थी आज की खौफनाक कहानी है। अपना फीडबैक मुझे ज़रूर दें, आप लोगों को कैसी लगी। आप लोग भी अपनी खौफनाक कहानियाँ शेयर कर सकते हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए ईमेल आईडी nusheer57@gmail.com पर। इसके अलावा आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में भी स्टोरी शेयर कर सकते हैं। इंशाल्लाह कल नाना जी की कहानियों में भी कहानी आएगी और पुरस्कार वाकयात में भी नई एपिसोड आएगी, उनको भी विजिट करिएगा। अपना बहुत सा ख्याल रखें, अपनी ढेरों दुआओं में मुझे, मेरी फैमिली, मेरे पूरे पाकिस्तान को याद रखिएगा। मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और सब्सक्राइब करें। जहाँ रहें खुश रहें। स्टे ट्यून। अल्लाह हाफिज़।